हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 12th का एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर 16। ये चैप्टर 16 जो है काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट है, जिसमें आज हम करेंगे इंडियन फिजिकल फीचर, यानी भारत के जो है देखा जाए तो भौतिक स्वरूप क्या है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो होगा कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, यूपी बिहार के बोर्ड के बच्चे, उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। साथ में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी विस्तार पूर्वक इसमें जो है काफ़ी कुछ है, तो ये चैप्टर उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we have a discussion most important chapter, India as a physical feature. There is a physical feature is the most important here. The topic arrive here: location, extent, and the boundaries of the India. There is a most important here topic: location, extent, and boundaries of India. How are landmarks of South Asia is a flanked by the new fault towering to the mountain on the northwest, northeast. The Arabian Sea lies to be is a southwest to the Bay of West of Bengal to the southeast, and the Indian Ocean to it is a south. This valley is a defined South Asian landmark is called to the Indian subcontinent. The subcontinent consists of the country of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, and included to the Sri Lanka, and its land is not by separated by the Park Strait. India is a long cover about the 3/4 of the area of the subcontinent and has the common container with each one of them. She along with here 5 neighborhood country here the from a clear identifiable geographical unit with a contain a common cultural is a parameters here. Since the all time, their country has been to now known by their various names such as Arya, Bharata, Bharat, Hindustan, and Italic India. There is a most important point here. Since the all time, the country has been to known by the various names such as Aryavata, Bharat, and Hindustan is the Italic Indian. The Indian Ocean is a Hind Mahasagar has also been to name it after the Indian. There are only country to be a so. According to the Constitution of India, the country is known as a Bharat or India. There is a most important here. India lies in the valley in their northern hemisphere. The Indian is a mainland extend be between to the 8 degrees 44 and to the north and 37.6 is the northern latitude, and from the 68 to east and 97.25 is the east longitude. Thus the latitude and longitude extent of the India of about 29 degrees. It is a measure about 3,214 km from north to the south and the 2,933 km from east to the west. Though the latitude and longitude extent is almost the same, the actual distance to do the differ considerable. And why it is so? This is because the east-west is the distance between two successive is a meridian of longitudes along the equator is at it is a maximum 1,100 is 1,011 kilometers here, and this is however goes on the decrease as one the moving from equator to the pole where it is a zero.
The equator to be a pole here where is the zero, and this is because all the meridians of the longitudes meet in the single point at the pole and both north and south here. On the other hand, the north and south distance between any two successive is a parallel of the latitudes along only meridians of the latitudes remaining almost uniform. The 111 kilometer is the most important point here. The following table may be further clarify this point. 111 kilometer, the point of clarifying this table. The here show the degree of latitude and distance between two successive latitudes in a kilometers here. The 0 here is a 111 kilometer and 10 is a 109 and 20 is 104, 30 is a 96 and 40 is an 85. And this all the right now there is a degrees of latitude of 90, there is a kilometer, there is a 0. There is a most important point here. The glance at the globes is should be help the convinces this point, and the northern is the most point of the Indian mainland lies in the state of Jammu and Kashmir, and the southernmost point is a Kanyakumari in the Tamil Nadu. However, there is a southernmost point of the country as whole lies further south in Andaman and Nicobar Island. It is now called the Indra Point. Is a here Andaman and Nicobar Island. It is now as the called Indra Point. It is situated at the 630 north latitudes. The westmost is a point of India lies of Gujarat, and the eastmost is a Arunachal Pradesh. There is an important here. Let you us see there is an impact of such a large latitudinal extent upon the lives of the peoples of India. The northern part of the country are quite far off from the equator, and therefore the ray of the sun strike those parts more oblique, and consequently this part of the country receive a lesser amount of the insolations and has a cold climate unlike their southern parts. Secondly, it is an important point here, the difference between the length of the day and the night in the southernmost part of India is a much less, only about 45 minutes, as they are situated too near to the equator, and this difference between day and the night in the northern part of India as it goes on the increasing till it becomes as much as 5 hours. The topics of cancer pass almost halfway through the country. There is important here. The tropical cancer of pass almost halfway through their countries, and thus the half of the country to be south of the tropical cancer is situated in the tropical and tourist row zone, and the other half lying is the north of tropics is a cancer fall in the subtropical zone. There is an important point here. The tropics of the cancer pass almost halfway through the countries, and thus half of the country to be south of the tropic of cancer is situated in the tropical and tourist zone, and the other half lying north of the tropical of cancer fall in the subtropical zone. There is important. The earth takes 24 hours to be a complete over rotation on its axis. The sun dies the first in the east, and then it is a west because the earth is rotated from west to east. The earth as a longitudinal exponent to be 360 is the cover in the 24 hours at the pace of the 15 degrees per hour. As the longitudinal extent of India is a nearby 29 Celsius, and the real time difference in India between its extent to western extremity of the roughly of 2 hours. Well, at there is still is a extremity of India, their day may be have just broken out. Their western extremity of would be take nearly is another 2 full hour to do so. There is a important here. To iron out their big chunk of the time difference, India, like all other countries of the world, follow the local size of the relative central meridians as the standard time for the whole country. For the convention of all each countries choose, it is a standard meridian in a multiply of 330s. And according to the standard meridian of India has been chosen to the 82 degrees 30 s east.
The north central part of the India is a border where there is the south part of tapered down to be brought to the Indian Ocean in a south. Thus, the northern part of the Indian Ocean has been divided into two ways by the sheer presence of India Peninsula. The western part of the northern India's ocean is called Arabian Sea, and while the eastern part is called Bay of Bengal. The total length of the coastline of the India included the island groups in about 7,560.2 kilometer. The bulk is separated India in mainland from Sri Lanka, and structurally the Sri Lanka is an extension of the peninsular block of India. There is an important point here. The northern central part of India is bordered with the southern part taper down to the border of India and Oceans south. And the northern part of the Indian Ocean is divided into two ways. There is important here. The presence of Indian Peninsula, and there is a part of northern India Ocean called Arabian Sea, and there is important an island group is about a size here 7,516.6 kilometer. There is an important and interesting point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है अत्यंत महत्वपूर्ण भारत के जो है भौतिक स्वरूप के विषय में, और इतना ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर पहला पॉइंट आता है कि भारत की स्थिति और विस्तार एवं सीमाएं। देखिए भारत की स्थिति क्या है और विस्तार एवं सीमाओं का क्या इसमें रोल है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत की स्थिति और भारत के विस्तार एवं सीमाओं के बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और दिलचस्प भी रहेगा, क्योंकि इससे हमें भारत के हर एक क्षेत्र के विषय में हर एक बातों के विषय में जो है हमें विस्तारपूर्वक जानने को मिलेगा। तो भारत की स्थिति विस्तार एवं सीमाएं काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि ये जनरली क्वेश्चन हर जगह देखने को मिल ही जाता है। कहते हैं दक्षिण एशिया के एक बहुत बड़े भूभाग के उत्तर पश्चिमी उत्तर और उत्तर पूर्व में ऊंचे ऊंचे नवील वलित पर्वत है, और इसके दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी आती है तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। तो आप समझ सकते हो कि भारत कितना विभिन्नताओं से भरा देश माना जा सकता है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ जो है जरूर है। दक्षिण एशिया के इस भाग को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत किस एशिया में आता है? दक्षिण एशिया के इस भाग को जो है भारतीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और इस महाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान देश सम्मिलित है। यानी दक्षिण एशिया देशों में कौन कौन से देश सम्मिलित है? तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान देश सम्मिलित है। कहते हैं सक्रिय जो है पाक जल संधि के द्वारा अलग द्वीपीय देश भी श्रीलंका भी इस अंक का ही पार्ट है, और इस उपमहाद्वीप के 3/4 क्षेत्र में भारत का विस्तार है। यानी भारत का विस्तार यहाँ पर सिर्फ 3/4 के अंतर्गत ही है, जिसकी सीमाएं उपमहाद्वीप के अन्य सभी देशों को छूती है। तो आप समझ सकते हो कि भारत के जो सीमाएं हैं सभी देशों के साथ जो है छूती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, चाहे आपका जो है अफगानिस्तान हो, तो सभी देश की सीमाओं से जो है छूता आता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और अन्य 5 देशों के सहित भारत एक संस्पष्ट भौगोलिक इकाई भी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। उपमहाद्वीपों के सभी देश संस्कृति दृष्टि से भी एक दूसरे से काफ़ी निकट है। यानी उपमहाद्वीपों के सभी देश संस्कृति दृष्टि से भी एक दूसरे के काफ़ी निकट हैं। और कहते हैं प्राचीन काल में हमारा देश जो है आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत को प्राचीन समय में बहुत से नाम से जाना जाता था, जिसके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। अगर बात करें प्राचीन काल में भारत जो था आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे भारत, हिंदुस्तान और इंडिया कहने लग गए, और कहते हैं हिंद महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर ही रखा गया। यानी हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम से ही रखा गया, और यही एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के देश के नाम पर रखा गया है। संविधान में हमारे देश के 2 ही नाम स्वीकृति है, एक तो भारत और एक इंडिया। यानी हमारे संविधान में सिर्फ भारत को 2 ही नाम से पुकारा जाता है, या तो भारत या इंडिया। भारत पूरी तरह से जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह से जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि अगर हम देखें तो 8, 4 की और जो है 37 और 6 की उत्तरी अक्षांश में है, तथा 8, 7 जो है इसका और
9725 जो है पूर्वी देशांत के बीच फैली हुई है। तो इसकी काफ़ी जो है फैलाव यहाँ पर दर्शाया गया है। और इस प्रकार भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 29 अंशों में है, यानी विस्तार लगभग देखा जाए तो 29 अंशों में है। लेकिन धरातल पर वास्तविक दूरी जो है उत्तर दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर की है, 3214 किलोमीटर की है। तथा जो है पूर्व से पश्चिम तक जो है इसकी जो है 2933 किलोमीटर की है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि पूर्व से पश्चिम तक जो है 2933 किलोमीटर है। अक्षांशीय और देशांतीय में विस्तार सामान्य होने पर भी वास्तविक दूरी में इतना बड़ा अंतर क्यों है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार सामान्य होने पर भी वास्तविक दूरी में इतना बड़ा अंतर क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि विषुववर्तीय वृत्त पर दो क्रमिक जो है देशांतरों के बीच की दूरी घट जाती है और ध्रुव पर जो है यह शून्य हो जाती है। और ऐसा इसलिए है कि सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों पर एक बिंदु में मिल जाती है। और इसके विपरीत किसी भी देशांतर रेखा पर दो क्रमिक अक्षांश वृत्तों के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी सदैव एक सामान्य जो अर्थात यानी 111 किलोमीटर की रहती है, यानी 111 किलोमीटर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये बात जानने के लिए जो है हम सारणी में भी इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो सारणी जो दिया है उसमें आप पूरी बातों को जो है काफ़ी जो है ध्यानपूर्वक समझ के इसको एनालाइज कर सकती हो। चलिए देखते हैं सारणी में क्या दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर जो सारणी दिया गया है, अक्षांश दिए गए हैं और जो है दूरी किलोमीटर में दर्शाए गए हैं। कहते हैं अक्षांश अगर 0 होगा तो 111 किलोमीटर को दर्शाएगा। और अंतिम पॉइंट अगर देखिएगा, अक्षांश अगर 90 डिग्री के आसपास है तो इसकी जो है किलोमीटर की दूरी जो होगा 0 हो जाएगा। तो जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दूरी जो है घटता जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को दर्शाया गया है इस टेबल में, जिसको आप भली भांति समझ गए होंगे कि अक्षांश जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे दूरी जो है वैसे वैसे कम होते रह जाएंगी। अगर 0 अक्षांश में देखा जाए तो 111 किलोमीटर को दर्शाया गया है और अक्षांश अगर 90 है तो इसको 0 डिग्री दिखाया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। ग्लोब में जो है दृष्टि डालने से ही ये बात को समझ में हमें आ सकती है। भारत की मुख्य भूमि का जो है उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर राज्य में है, यानी भारत के अगर उत्तरी हम छोर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आता है। तथा तमिलनाडु में कन्याकुमारी जो है इसका दक्षिण छोर है। तो कन्याकुमारी आपको पता ही है कि दक्षिण छोर के अंतर्गत आता है। लेकिन देश का अधिकतम छोर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। इसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंदिरा पॉइंट किसे कहते हैं। जो है दक्षिणतम छोर को जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और यह 6 से 30 उत्तर अक्षांश पर यह स्थित है और भारत के पश्चिमी सिरा गुजरात में तथा पूर्वी सिरा अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये समझ सकते हो कि बात कि भारत का पश्चिमी सिरा जो है गुजरात को माना गया है और पूर्वी सिरा जो है अंतिम जो है अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर जनसंख्या अभी बहुत मानने में कम है क्योंकि इसी के पास जो है चेरापूंजी पड़ती है, ठीक है, जहाँ पर बरसात जो है हर साल हर महीने होता ही रहता है, हर दिन होता ही रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके जो है पूर्वी छोर से देखें पश्चिमी छोर तक, यानी पश्चिमी छोर में गुजरात आता है और पूर्वी छोर में अरुणाचल प्रदेश अंतिम आता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे इंपॉर्टेंट बात को कि अगर उत्तर से पश्चिम की बात करें तो उत्तर में तो जम्मू कश्मीर होता है और जो इसके दक्षिण छोर में जो होता है कन्याकुमारी होता है, पश्चिमी छोर में गुजरात होता है, तो पूर्वी सिरे में जो होता है अरुणाचल प्रदेश होता है। तो इसको चारों भागों के विषय में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर थी। आइए देखें कि इतने बड़े अक्षांशीय विस्तार का भारतवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और देश के उत्तरी भाग जो है विषयवर्ती वृत्त से काफ़ी दूर है। अंततः इन भागों में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती है। फलस्वरूप यहाँ जो है सूर्य ताप कम मिलता है। अंततः दक्षिण भागों के जो है विपरीत ये भाग काफ़ी ठंडा होता है, यानी दक्षिण के भागों के विपरीत देखा जाए तो ये भाग काफ़ी ठंडा होता है। और अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। कहते हैं विषुववर्तीय वृत्त के निकट स्थित भारतीय क्षेत्रों में दिन और रात की अवधि में लगभग 45 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि विषुववर्तीय वृत्त के निकट स्थित भारतीय क्षेत्रों में दिन और रात की अवधि में जो है लगभग 45 मिनट का अंतर होता है और भारत के उत्तरी भागों में दिन और रात की अवधि में यह अंतर क्रमशः बढ़ जाती है।
उत्तरी भाग में यह अंतर जो है 5 घंटे तक का हो सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कर्क वृत्त भारत के लगभग 20 से होकर गुजरता है, यानी कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरता है, जिसको आप मैप में भी भली भांति देख सकते हो। और इस प्रकार कर्क वृत्त के दक्षिण भाग जो है उष्णकटिबंधीय में स्थित होती है, और कर्क वृत्त के उत्तर का शेष आधा भाग जो है शीतोष्णकटिबंधीय में आता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कर्क वृत्त भारत के लगभग 2 बीचों भाग में गुजरता है, और इस प्रकार जो है कर्क वृत्त के दक्षिण का भाग जो है उष्णकटिबंधीय में स्थित है, और कर्क वृत्त के उत्तर का शेष आधा भाग शीतोष्णकटिबंधीय में आता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर देखा जाए तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमने के कारण सूर्य सबसे पहले पूर्व में उदय होता है, यानी देखा जाए पूर्व के पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमने के कारण सूर्य जो है सबसे पहले पूर्व में उदय होता है तथा दक्षिण में बाद में उदय होता है। कहते हैं पृथ्वी जो 360 डिग्री के अपने देशांतरी विस्तार को 15 डिग्री प्रति घंटे की गति से 24 घंटे में पूरा भी कर लेती है। भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 29 का है, यानी 29 काफ़ी महत्वपूर्ण है इसका विस्तार। अंततः भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के वास्तविक समय लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, यानी यही 29 के कारण जो है भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के वास्तविक समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। और इस प्रकार जब भारत के पूर्वी छोर पर सूर्योदय होता है तब पश्चिमी छोर अंधकार में डूबा होता है। समय के अंतर की इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए अन्य देशों की तरह भारत ने भी एक मानक मध्य रेखा का चुनाव किया है, यानी भारत ने भी एक मानक समय लिया है, इसको मानक मध्यम रेखा का चुनाव करने के बाद कहा जा सकता है। और मानक मध्याह्न रेखा पर जो स्थानीय समय होता है उस समय देश के मानक समय माना जाता है। और भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है 82-30 पूर्व देशांतर है, तो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। और इसका स्थानीय समय ही सारे भारत का मानक समय माना जाता है। तो भारत ने जो है मानक समय किसको माना है? 82-30 पूर्वी देशांतर को माना है, जिसको पूरे भारत में यही मान्यता प्राप्त है। मध्याह्न रेखा का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के लगभग मध्य से गुजरने तथा 7 से 30 से पूरी विभाजित हो, यानी पूरी इसको विभाजित किया जा सके, यानी 82-30 देशांतर रेखा इस दोनों ही कसौटी पर जो है खरी उतरती है, इसलिए इसी को जो है 82-30 के देशांतर रेखा में लिया गया है। भारत का उत्तरी मध्य भाग चौड़ा काफ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत का उत्तरी भाग जो है काफ़ी चौड़ी है, जबकि इसका दक्षिण भाग हिंद महासागर की ओर संक्रिय होता गया है। और इस प्रकार हिंद महासागर जो है भारतीय प्रायद्वीपों के कारण 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। उत्तर हिंद महासागर का दक्षिण भाग जो है अरब सागर के नाम से तथा पूर्वी भाग जो है बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और द्वीप समूह सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। और पाक जल संधि भारत की मुख्य भूमि की श्रीलंका से पृथक करती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है। हमने यहाँ पर भारत की हर एक देशांतर के बारे में और जो है बात की, लॉन्गिट्यूड के बारे विषय में चर्चा की और जाना कि भारत को किस किस नामों से जाना जाता है। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे जो है हम इसके साइज़ के बारे में जानेंगे, आकार के बारे में जानेंगे, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर के साथ बने रहें, ठीक है। और एक बात नहीं भूलना है कि जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिनके सिलेबस में होगा वो देखेंगे। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जिनको देखना होगा देखेंगे, जिनको नहीं देखना है नहीं देखेंगे। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। जिनको देखना है, जिनको समझना है वो समझेंगे, जिनको देखना नहीं समझना है वो नहीं समझेंगे, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आपको त्रिपाठी सेंटर अच्छा लगता है तो बाद में शायद आपको प्राप्त न हो। कोई भी अगर टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो वहाँ पर जो है त्रिपाठी सेंटर नहीं नज़र आएगा। इसलिए अगर चैनल सब्सक्राइब करके रखते हो तो आपको होम पेज मिलेगा, जहाँ से आपको वीडियो का ऑप्शन में आपको जो है सारे वीडियो आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। जो वीडियो आपके सिलेबस में है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, उसको सेव करके रखिए और इसका फ़ायदा उठाइए।